action. A lane that meanders through dark, congested shacks and houses. Rows of brick houses with broken doors, makeshift curtains. Open pits, water running out of taps. And lots of faces of children. Some roaming aimlessly. Others focused, eyes in hands, seeking knowledge. This is a basti in R.K. Puram area of New Delhi. A cluster which was handpicked for a unique project called Manch by the Hungarian Cultural Center, Delhi. First of all, I'm very happy we found this name Manch. Though it's a Hungarian-Indian collaboration and project also, that we definitely wanted, find a word which has a meaning in both languages. And when I discovered that in Sanskrit and I believe also in Hindi, Manch means a stage, it means po in Hungarian, which fits with the kids because they are really, like small pets on the stage, as you can see also on the design. After that, when we got the idea, everything became so easy. You believe in something, you had an idea, and you see that, becoming true. I had this experience a few times, and I'm sure that it will be one of the, the most cathartic one, the best one. We are trying to have programs with the kids, definitely as a culture center, because it's a huge public for us, they are very perceptive, and we have a lot of programs for kids and with kids. And also on the other side, we were planning, to have some theater program. We were in talks with the National School of Drama. We had ideas for summer workshop, and suddenly, just before Christmas, something like that, the two ideas came together. जब मारियान मैम और विक्रांत सर हमारे पास आए तो एक आइडिया लेके आए कि क्यों ना एक स्टेज तैयार किया जाए बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, जो भी थिएटर ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद उन्हें एक स्टेज प्रोवाइड किया जाए कि वहाँ पे जाके वो परफॉर्म करें। तो ये ना एक इनिशिएटिव के तौर पे नहीं, ये मेरा शायद बचपन का सपना था कि स्लम्स के बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो जाएं, और एक स्टेज ना एक सपना है उनके लिए, जो बचपन में मेरा भी सपना हुआ करता था। तो जब उन्होंने ये आइडिया हमारे सामने रखा तो मैंने अपना सपना देखा कि यार वो स्टेज तो मेरा सपना था, शायद इनका सपना पूरा होने वाला है। तो एक ये ड्रीम पूरा होने वाला था। स्लम में रहने वाले बच्चों की ना दुनिया बहुत लिमिटेड होती है, डेली स्ट्रगल इधर करना, छोटे छोटे कामों में बिजी रहते हैं, और डेली लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं फैमिलीज के, छोटे छोटे कई बार कामों में भी जाना पड़ता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती नहीं है। तो जब पहली बार आइडिया सामने आया तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब कि उनके लिए गोल्ड है। तो हमने एक्सेप्ट किया और क्यों ना जुड़ा जाए इनसे। और मारिन मैम का सपना मतलब कि A to Z, मतलब आने से जाने तक का सफर, उन्होंने बोला सब डन होगा, हमारी तरफ से होगा, आपको सोचने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आप बच्चों को तैयार रखिए।
I have 23 of experience of working with kids. So in Delhi, Mumbai, and other part of the country. So I said, I'm very much comfortable with kids. Just tell me whatever you want to do. Just give me the kids and give me some space and tell me what to do. One thing leads to another. Then we came up to this idea, let's do a theatre workshop, which will end as a performance-based workshop. So बच्चे जो हैं वो they will come on stage and they will perform. But the big question is what they are going to perform. Then she gave me a book, Hungarian folktales book in Hindi, which I read, and somehow I figured out that they are not much different from our Amar Chitrakatha and Panchtatra. तो मैंने बोला ये तो बहुत आसान है. It's not going to be so hard for them to understand. So I said, yeah, definitely we are going to perform on Hungarian folktales. And the first day when kids came and we started working with them, I gave them the script, I gave them the idea, because you need to be honest with the kids, you can't cheat them. तो मैंने उनको फिर वो books दिए और वो stories बताए stories के बारे में, and they were very much familiar and like comfortable with it. सर ये तो पता है सर, ये या तो इधर थोड़ा सा मिस है, उधर से थोड़ा सा मिस है, और वो अपने आप जोड़ लेते हैं. So this is how like we came up with this idea to conduct a workshop in making a play, a skit on Hungarian folktales. And the best part I like is that kids are very much comfortable with it. There's nothing is forced on them. कि तुमको ये करना है, यही करना है. नहीं, they are comfortable, they are happy about it, they are playing their characters, they are making their plays, and so on. वो जो है ड्रैगन की वाइफ है, वो उसको जब तक खाना नहीं देगी, उसे कूटेगी नहीं, तब तक वो तो सबकी, और जब तक वो गाय नहीं खरीदेगी ना ढंग से, तब तक वो सीन बेकार हो. और एक एक सीन से प्ले बनता है, परफॉर्मेंस से सीन बनते हैं. फॉर्म देती है. गुड, ओके, ये सब सही बोला उसने. सर प्रधानमंत्री लड़की थी. सर वो एक टोकरी चुराती है. गुड, वेरी गुड. नहीं कोई बात नहीं, ऐसा चलता है. वेरी गुड. At the beginning, they didn't know about the idea that they will perform on stage with Hungarian folktales. And slowly, they get to use, they knew the stories, they knew the characters, and they can relate with them because Hungarian and Indian culture have so many points in common. So even the figures, even the stories, and it's amazing to see their adaptation of the Hungarian stories on stage mixed with Indian culture. बोले पिताजी, आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? बेटा, मैं तुम तीनों से बराबर प्रेम करता हूँ, मगर मैं तुम तीनों से बराबर प्रेम करता हूँ, मगर मैं अपना राज्य तुम तीनों में से किसी एक को सौंपना चाहता हूँ. तो वो कौन है पिताश्री? मैं उसके लिए एक परीक्षा दूंगा तुम्हें. परीक्षा? और उसमें क्या होगा? इसे क्यों करना है? तुम्हें मैं बताता हूँ, सुनो तो. तुम्हें एक कपड़ा लाना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 गज की हो, और वो मेरी इस अंगूठी के आर पार निकल जाए. कौन सी अंगूठी है? तो चार अंगूठी है. अरे लो, ये वाली. ये तो हीरे की है. हाँ, इसी की. ठीक है. 10 दिन और 10 साल के बाद देखते हैं मकड़ी बना पाती है कपड़ा. बना दिया. बोल तो बड़ी मोटी रहती. डैड, फेंक दे तुमने, इतना फेंकना था. बना दे मेरे लिए कपड़ा. ला कपड़ा. हाँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लाई. बस छोटा कपड़ा. उंगली डाल चेक करके देखो, अगर नकली निकला तो. वैसे भी आजकल लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए. क्यों निकल रहा? पिताजी, मुझे मिल गया. अरे वाह बेटा, तुम तो ला दिए. मुझे भी लगा के देखता हूँ. ये छोटा कैसे ढूंढ पाया? अरे ये तो गवाह था ना. अपनी तरह मत समझो उसको. अरे मैं तेरे को अपनी तरह समझता नहीं हूँ. वाह बेटा, मेरे को तुमसे डर हुआ. For the Hungarian folktales, there are hundreds and hundreds. So finally, we had the choice of 3 Hungarian folktales. Which one is the giant beanstalk, which is known in other cultures also. The third one, it's the Haridara Vala Raja, so the green bearded king, which is a less known Hungarian folktale. Frankly speaking, myself either I didn't know. And the third one is Ribike.
Mera India, Mera Adhikar, an NGO that was created by Prem Prasad. Born and brought up in these narrow lanes, having suffered the trials and tribulations of everyday struggles, Prem Prasad fulfilled his dream of emancipating the children of the slums through starting MIMA and providing education to them. मीमा संस्था की शुरुआत हमने 2013 में की थी। बेसिकली ये एक इनिशिएटिव से ज़्यादा एक विचार है, तो हम भी जो स्लम में रहने वाले युवाओं के द्वारा ही चलाया जा रहा है और स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए ही चलाया जा रहा है, तो बाहर से ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी शुरुआत 2013 में हमने कब करी, जब हम खुद ही अपनी एजुकेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। एक विचार था, हम कुछ युवा दोस्त थे, तो हमने विचार रखा कि एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हम अपने आसपास रहने वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर पाए जो हमने स्ट्रगल फेस किया अपनी ग्रेजुएशन तक की जर्नी में, तो वो दूसरे बच्चे फेस ना कर पाए। ये जो बच्चे हम लोगों ने सेलेक्ट करे फ्रॉम मीमा, people call them underprivileged kids, but I call them under-resourced kids. There's a big difference. They are not underprivileged. They have a lot of privileges of talent. Every kid is full of talent. The main purpose is to make them learn कि वो क्या सीख के जा रहे हैं, वो आगे याद रखेंगे नहीं रखेंगे इस चीज़ को आगे। So that was the main purpose, to make them happy, to make them content, to make them learn, to make them educated about each and everything what they are coming for. And it's not only about plays. हम लोग सिर्फ stories पे काम नहीं कर रहे. We play here, we do exercises here. There's beautiful conversations going on between me and Marian and the kids. Some innocent conversation which we can't even imagine. Every kid has his own mind. इसके लिए दो अच्छी लड़कियां लोगी, बताओ। गुड, वेरी गुड, नाइस। मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि यार क्या होगा, मैम के साथ कंफर्टेबल होंगे नहीं होंगे, मगर उनकी तो दोस्ती हो गई है अब। तो वो बच्चे ना घर में बैठ के भी इंतजार कर रहे होते हैं कि यार कब जाएंगे सर से और मैम से मुलाकात होगी। तो इस तरीके का ना फैमिलियर करना, बच्चों को फ्रैंकली करना और उनको अपनापन महसूस करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो दूसरे एक कल्चर से बिलोंग करती हैं, हंगरी से, और इंडियन बच्चों के लिए इतना प्यार वो अलग है। मैंने यहाँ पर आकर अपने दोस्तों के साथ कैसे काम कर सकते हैं ये सीखा, और टीम वर्क सीखा कि हम लोग कैसे मस्ती मस्ती में हम चीजें सीख जाते हैं। इस वर्कशॉप में आके हमने ये सीखा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमारी लाइफ को कितना अच्छा बना सकता है, और ये जो हम ये ड्रामा करते हैं वो हमारे आगे चल के बहुत सारी चीजों में काम आ सकता है। हम बहुत अच्छे यहाँ पे हम मजाक मस्ती करते हैं, सब एक साथ अच्छे से यहाँ पे हमें लंच मिलता है, हम अच्छे से खाते हैं, सब फ्रेंड्स खेलते हैं यहाँ पे। वो दोनों एस्केप करने की सोचते हैं। कहाँ से? डीमन के फॉरेस्ट से। And you can't even imagine the level of conversation now they share with us. Everything they share with us. And when they get comfortable, you can ask them to do anything. आप उनसे कोई भी मैजिक करा सकते हो, तो फिर वो मना नहीं करते. They don't have this no for you. Murgi is not like this, like a cow. Okay, so you have to walk like this. You know, during these 6 weeks, they got really close to Hungarian culture. Even a few of them mentioned the idea that they would like to start to learn Hungary. The Hungarian Indian culture merged on stage. And there is a moment in the green-bearded king story when the prince
will go and fix the problem created by the father, and he touches the feet. And it's so Indian, but in the Hungarian context, that I was just amazed, because it came, it was genuine from the boy who is playing the role, and I just love that. हंगेरियन कल्चर के बारे में, वो स्पोर्ट्स में किसी टाइम टॉप पे था मेरे ख्याल, फुटबॉल में, मुझे नहीं पता, बच्चों ने बताया है। तो वो ना एक एक चीज़ें जानना चाहते हैं कि वहाँ पे सुपर हीरो कौन से, उनके एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, वहाँ का पॉलिटिशियन कौन है, क्या है वहाँ का कल्चर, क्या एजुकेशन क्या है, वहाँ पे बच्चे कैसे रहते हैं, बड़े कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री जानना चाहते हैं वो बच्चे। तो एक उत्सुकता कल्चर के बारे में, दूसरे के बारे में जब आई है, तो खुद का कल्चर तो जानते ही हैं, क्योंकि स्कूलों में हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो अपना कल्चर पढ़ते हैं हम, लेकिन दूसरों का कल्चर जानना तो ये नया है। अब बच्चों के अंदर इतना मतलब कि उत्सुकता आ गई है, वो बैठ के ना मैप में ढूंढते रहते हैं इंडिया से हंगरी का डिस्टेंस क्या है। उन्होंने सपने देखने शुरू किए हैं। जब उनके परिवार को बताया गया कि ये हंगेरियन एम्बेसी के अंदर जाने वाले, तो वो गेट के अंदर आना ही उनके लिए एक सपना पूरा होना। क्योंकि वो भी शायद डेली वेजेस हैं, कोई गार्ड का काम करता है, कोई घरों में काम करती हैं महिलाएं, तो इस तरीके छोटे छोटे काम करते हैं। तो उनकी दुनिया बहुत लिमिटेड है कि शाम को जाना है, खाना पकाना है, खिलाना है, बच्चों को सो जाना है और दिन की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो ये सारी चीज़ें उनकी डेली रूटीन में है ही नहीं। मगर जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि यार हमारा बच्चा हंगेरियन एम्बेसी हो क्या है, तो ये अचीवमेंट है उनके लिए। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये स्लम का गेट है, यहाँ तक दुनिया लिमिटेड है, मैं ये करूँगा और छोटी मोटी पढ़ाई करके अपने को सेटल कर लूँगा, इससे ऊपर भी सोच सकते हैं वो। तो ऐसा सोचना शुरू कर दिया बच्चों ने कि दुनिया लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़ी हंगरी तक है। एक स्टोरी में मैं नरेटर हूँ और एक स्टोरी में मैं रिबिके हूँ। रिबिके वो विधवा औरत की वो होती है बेटी। अच्छा, तो वो राजा की हेल्प करती है। मैं एक स्टोरी में मैं हूँ और मेरा एक लीड रोल है, योनची नाम है मेरा उस प्ले के अंदर। और ये एक जादुई फली की कहानी होती है। एक बीज होता है और राक्षस मेरे पीछे आता है ना, राक्षस मेरे को पकड़ने वाला होता है, मैं उसके नीचे से निकल जाता हूँ, फिर उसके ऊपर चढ़ के उसको एक टपली मार देता हूँ। जो मैं इन बच्चों के साथ कर पा रहा हूँ वो शायद मैं एक हाई क्लास स्कूल के बच्चों के साथ ना करूँ। सो माय फर्स्ट पर्पस वाज टू आइस ब्रेक देम, उनको कंफर्टेबल बनाना। दे आर कमिंग इन अ न्यू टेरिटरी, दे आर कमिंग इन एन एम्बेसी, and Hungarian Cultural Institute is in the embassy. They're coming with so lot of security in, and there's a new space for them. तो उनको comfortable बनाना was the main purpose। कि सबसे पहले शुरू के 2-3 क्लासेस तो मैंने उनको सिर्फ उनको conversation के थ्रू की that I am one of you. I'm not a teacher. I'm not here to teach you anything. I'm just going to play around with you and then we'll do some magic. I can also say that it's not just for the Hungarian Culture Center, for many other culture centers in Delhi, these institutions are mainly the first phase of the embassy. So this is the easiest way, to reach out to Indian people, because we are here all, with my colleagues, foreigner colleagues, to promote our culture. So we are dedicated to promote Hungarian culture in India, which is very easy. Because the Indian public is, very, very open to these things, and luckily we have a lot of common points we can work on. When we got to the idea, we started to talk about the project with Vikrant. We started to think about whom to reach out, and all together, Indian drama teacher Vikrant, Mima, the NGO,
ISOM's Sleep Well as also a sponsor, and the Culture Center itself with the embassy. So I think it's just a beautiful example of Indo-Hungarian collaboration. And finally, the day arrived when the 6 weeks of fun-filled, sometimes grueling, other times invigorating workshop yielded the spectacular performance on stage. Eager faces, nervous expressions, adrenaline pumping, each participant outperforming the other, in front of an audience filled with curiosity and expectation. तो इस राज्य का मैं नया राजा बना। अरे पहले का नाम मेरे को बता दो। तो मैं चुप हो जा। तो इस राज्य का नया राजा बनता है मिक्लोस। सिर पिताजी मैं कहाँ जाऊँगा? बड़े भैया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ अच्छे से और खुशहाली से रहेंगे। भाइयों ने भी खुशी खुशी से कहा कैसा नहीं। They are being brought onto the manch, which is the stage. That act of bringing children into the limelight, making them visible, giving them voice, giving them identity, giving them agency is a wonderful experience for them. And also as they also became script writers. मुझे उस वक्त ना गर्व हुआ था कि मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी कि लोग मेरे लिए ताली हो जा रहे थे। कैसे पिता तुम्हारे जो अपने बेटे को नहीं जानते? वो 17 साल से जंगल में थे ना, इसलिए वो मुझे नहीं जानते। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से 3 कार्यों में जाने दूंगा। कैसे कार्य? जल्दी बताइए। मेरा पहला कार्य यह है कि तुम्हें चिड़िया के पंखों से क्रेन हैट बनानी होगी। क्या क्रेन हैट? ये तो बन ही नहीं सकती। अगर तुम नहीं बना पाए तो तुम जान से मारे जाओगे। ये कैसे बनेगी? अब वो तुम जानो। सिपाहियों, इसको काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं, पागल। ये जो हम राइट एज में राइट यूथ को समझा रहे हैं और पास लेकर आ रहे हैं थ्रू कल्चरल एक्सपीरियंस, बातों से नहीं, आपके बिहेवियर से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके एक्सपोजर से, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग इट टुगेदर. इट्स लाइव, इट्स लाइक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नॉट थियोरेटिकल. ये बच्चा बड़ी देर से यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो इसके पास जाकर इसकी समस्या पूछ कर आता हूँ. वो बच्चे, काका तेरा क्या नाम है? मेरा नाम योंची है. तू इसे को कहाँ लेकर जा रहा है? काका मैं इसे को बेचने लेके जा रहा हूँ. आज जो हम लोगों ने प्ले देखा वो लग रहा है कि सही डायरेक्शन में, जैसे कि होता है ना कि अब बच्चे भविष्य हैं तो भविष्य कैसा होगा, अगर भविष्य ऐसा है, ऐसे परफॉर्मेंस और उनको नेचर के बारे में पता है, इन्वायरमेंट के बारे में पता है, सोसाइटी के बारे में पता है, अगर बचपन से ही वो वैल्यूज़ इन्हेंस हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है उसको भविष्य में जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे, ऐसा ही नहीं है कि वो आर्टिस्ट ही बनेंगे, जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे तो कम से कम उनमें एथिकल वैल्यूज, सोसाइटी को लेकर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी से इन्वॉल्व होगी तो आगे जा कर के वो बेहतर करेंगे सोसाइटी के लिए और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी. पहली बार मैं आई हूँ ऐसे प्रोग्राम में और पहली बार में बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है. हम लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा. मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने सपने देखने शुरू किए हैं. जब वो एक नई जगह आए हैं, नए लोगों से मिले हैं, नया प्लेटफॉर्म, और 1-2 दिन के लिए नहीं है, 1.5-2 महीना ये चला है और उसके बाद एक स्टेज मिलने वाला है उन्हें, और तो ये एक उनके लिए नया अनुभव है. तो मैं को ऐसा लग रहा है कि एक ना दुनिया को देखने का नजरिया उनका बदलने वाला है. 1, 2, 3 वह जहाँ भी था, जहाँ भी नहीं था, वह 7-7 देशों से भी आगे था. यहाँ तक कि जहाँ छोटी दुम वाला सुअर घूमता है, वहाँ एक हरी दाढ़ी वाला बूढ़ा था.
वर्कशॉप शुरू होने से पहले मेरे बाल काले थे, तो उन्होंने इतना परेशान किया, अभी सफेद हो गए, थोड़े थोड़े जा रहे हैं. No, jokes apart, that I always enjoy it. I always I love to. I'm also a professional acting teacher. I teach acting as well, but I love to work with kids because number one, they don't judge you. Kids, they never judge you. They don't ask too many stupid questions out of their whatever knowledge they have. They just trust you, and the moment they trust you, they can do anything, and I can make them do anything. They don't have this balanced mind of yes, no consciousness, no. And when they see each other performing, that gives them a sense of competition. वो कर सकता है, if he can or she can do it, why can't I do it? And when they start doing it, and this is what I love with them, and it's like, and every workshop is like a new book for me. Yeah, you have to read it again and again and again with the memories, and then every workshop, I can write a book on each and every workshop, to be honest. Every time they do something and they start improvising, whenever I give them the story and give them the time to improvise, okay, now it's your time. You won't believe I haven't made a script. We didn't write any script for this. I just gave them the story. We divide the story into scenes. Okay, scene mein yoga, scene mein yoga, scene mein yoga. You decide the characters, you make the lines, and you decide the duration of this performance. And after 45 minutes or 1 hour, they come up with the improvisation and with the play, and you can see the entire story. Even you can hear the entire story. You don't even need to see it. You can hear it. They are so expressive with their voice and with their movement. And even if you hear it, you will understand that what they have done. So that's the beauty of this, whatever they are doing. मंच एक स्टेज है बच्चों के सपनों को जो उड़ान दे रहा है, उन्हें सपने देखना सिखा रहा है. I believe this is a very unique, out of the box, full of purse as a kids and adventure project. Oh, the magic is happening and happening and happening and happening and happening. Everyday magic. Just come and watch it.